Bismillahirrahmanirrahim. Welcome again to the course of Introduction to Logic. In the previous lecture, we have discussed about the inductive reasoning and also about the type of generation and type of generalization, sampling, random sampling and bias sampling also. Today we are going to discuss about the explanation in the today lecture and inference to the best explanation and also seven explanatory virtues of the explanations. What is basically explanations? Explanations help us to understand why something happened, not only simply convince us that something has been happened. सिंपली मीन ये है बेटा कि एक्सप्लेनेशन हमें ये बताता है कि कोई चीज़ क्यों अकर हुई है, सिर्फ ये नहीं बताता कि वो अकर हुआ है. सो इन दिस सेंस वी कैन से दैट explanation basically concerned with why something has been occurred. However, there is a common kind of inductive argument that takes the best explanation of why X occurred as an argument for the claim X that has been occurred. Mean simply we are going to understand this concept that if something has been explained that why something has been occurred, so multiple explanation has been possible. So which one is the best explanation to explain the situation that has been occurred at that time? That is called the best explanation according to their situation. For example, suppose that your car window is broken and your iPod which you left visible in the front seat of your car is missing. The immediate inference you would probably make is that someone broke the window of your car and stole your iPod. What makes this a reasonable inference? What makes it is a reasonable inference is that this explanation, this explains all the relevant facts, broken window, missing iPod, and does so better than any other competing explanation. In this case, it has perhaps possible that a stray baseball broke your window, but since let us suppose that there is no baseball diamond close by, so and people doesn't please don't play catch in the parking garage you are parked in. This seems unlikely. Moreover, the baseball the baseball the baseball scenario doesn't explain why the iPod is gone. So it's mean multiple explanation is possible. कोई ये भी कह सकते हैं बेटा कि कोई आया और उन्होंने आपकी कार की जो विंडो है, शीशा है, वो तोड़ा है और उसके बाद आपका आईपॉड उठाया है. ये भी हो सकता है कि आपके शीशे को कोई बेसबॉल लगा हो, वो टूट गया हो. लेकिन पर अगली बात यह है कि आईपॉड कहाँ कैसे मिसिंग हुआ, ठीक है ना. इसी तरह जो है वो मल्टीपल जो है वो यू कैन से इंसिडेंट्स के बारे में माइंड में आ सकता है. मल्टीपल इन्फ्रेंसेस कैन बी मेड हेयर. सो विच वन इज़ द बेस्ट वन? The best one explanation that can explain the situation and that how it has been broken down and how the iPod has been missed. So जो situation इसको best explain करेगा, that will be called inference to the best explanation in the form of inductive arguments whose premises are a set of observed facts, a hypothesis that explain those observed facts, and a comparison of competing explanation and whose conclusion is that the hypothesis is true. The example we have just been discussing is an inference to the best explanation. Here is its form. For example, number one, we can say that what are the observed facts? The observed facts are your car window is broken and your iPod is gone. Secondly, explanation what explanation we are putting here? The hypothesis that a thief broke the window and stole your iPod. A reasonable explanation of the observed facts. यानी हम यहाँ ये एक्सप्लेनेशन दे रहे हैं कि किसी चोर ने गाड़ी का शीशा तोड़ा है और आईपॉड उठाया है या चुरा लिया है. ये रीज़नेबल जो है वो मोस्ट रीज़नेबल एक्सप्लेनेशन इस वक्त फैक्ट्स को माइंड में रखते हुए हम कर सकते हैं. थर्ड कंपैरिजन ये है कि नो अदर हाइपोथेसिस या इंफरेंसेस प्रोवाइड्स अस रीज़नेबल एज रीज़नेबल एन एक्सप्लेनेशन. बाकी जितने भी इंफरेंसेस या हम हाइपोथेसिस देख लें कि बाकी क्या क्या हो सकता है पॉसिबल, उसमें हमें कोई रीज़नेबल जो है वो इंफरेंस नहीं मिल रहा या हाइपोथेसिस नहीं मिल रहा. सो कंक्लूजन हम ये निकाल रहे हैं कि देयरफॉर अ थीफ ब्रोक योर कार विंडो एंड स्टोल योर आईपॉड. ठीक है, दिस इज आवर कंक्लूजन. सो इन दिस केस वी से दैट व्हाट वन थिंग इज एक्सप्लेनेशन that why something has been occurred, and the best explanation that what inference can be made that is best suitable
for the explanation of that situation that has been occurred. Okay, so in this case, a number of other hypotheses, or you can say a number of other explanations can be made. But which one is the best explanation that explain the situation is that the thief broke your car window and has been stolen the iPod. So how we can what are the seven explanatory virtues on the basis of which we are going to decide that this is the best explanation of the situation. So number one is explanatoriness. Explanatoriness is basically explanation must explain all the observed facts. Mean explanatoriness is the virtue of the explanation that will explain all the observed facts. Mean जो कुछ वहाँ हुआ हो वो सारी चीज़ों को और सारे facts को जो है वो डिस्क्राइब करता हो, इसको हम कहते हैं एक्सप्लेनेटरीनेस. सेकंड हमारे पास है डेप्थ. एक्सप्लेनेशंस शुड नॉट रेज मोर क्वेश्चन देन दे आंसर. मीन डेप्थ यह है कि जो सिचुएशन अगर हुई है उस सिचुएशन में जो हुआ है उसके मुताबिक जो क्वेश्चन रेज हुए वो आंसर किए जाए. ठीक है, उससे ज़्यादा इन डिटेल या उससे ज़्यादा कंपैरिजन में कोई और चीज़ बताने की ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि वॉकर ही नहीं हुई. जितनी है उतनी ही बताई जाए, उससे आगे बताने की ज़रूरत नहीं है. द थर्ड वन इज़ नॉन एज पावर. एक्सप्लेनेशन शुड अप्लाई इन अ रेंज ऑफ सिमिलर कंटेक्स्ट, नॉट जस्ट द करंट सिचुएशन इन विच द एक्सप्लेनेशन इज़ बीइंग ऑफर्ड. पावर ये है कि हम उससे रिलेवेंट जितने चीज़ें अकर हो सकती है हम उसको भी माइंड में रख ले. और इस जैसे सिचुएशंस के जब भी दुनिया में ऐसा होता है कि कोई गाड़ी का शीशा टूटा हो और उसमें कोई कीमती चीज़ पड़ी हो और वो मिसिंग हो, तो बिल्कुल ये साफ ज़ाहिर होता है कि इससे पहले सिचुएशन में ऐसा ही हुआ होगा कि हुआ होता है कि कोई तीफ आता है और वो देखता है कि ये गाड़ी में कीमती सामान पड़ा है, वो शीशा तोड़ लेता है और कीमती सामान उठा के चला जाता है. ठीक है, ये इत्तेफाक नहीं है, बल्कि इससे पहले जितने भी इस तरह के सिचुएशन हुए हैं तो पावर किसी एक्सप्लेनेशन में जो पावर वर्चू है वो ये बताता है कि इससे पहले जितने रिलेवेंट एक्सप्लेनेशंस है उसमें भी इसी तरह कर हुआ होगा. दैट इज कॉल्ड सिमिलर कंटेक्स्ट इन द सेंस. नेक्स्ट हमारे पास है फाल्सिफिबिलिटी. तो फाइबिलिटी जो है दैट एक्सप्लेनेशन शुड बी फाल्सेबल. फाल्सेबल का मतलब है कि इट मस्ट बी पॉसिबल फॉर देयर टू बी द एविडेंस दैट वुड शो द एक्सप्लेनेशन इज इनकरेक्ट. पॉसिबल है कि हमने जो ऑब्जर्वेशन की हो वो ऑब्जर्वेशन गलत भी हो सकती है, क्योंकि हम इंडक्टिव रीजनिंग के बारे में हमने यही पढ़ा है कि इंडक्टिव रीजनिंग में अक्सर जो है वो प्रीमिसेस ट्रू होता है लेकिन कंक्लूजन फिर भी फॉल्स आ जाता है. तो इस सिचुएशन को हम क्या कहते हैं, इस सिचुएशन को हम कहते हैं जो है वो इंडक्टिव रीजनिंग में ऐसा होता रहता है हमारे पास. तो ये पॉसिबल है. तो फाल्सिफाइबिलिटी में ऐसे ही है कि फाल्सिफाइबिलिटी में पॉसिबल है कि जो हमने एविडेंस शो किए हैं वो एविडेंस या जो प्रीमिसेस है वो फॉल्स हो. ठीक है ना जी. और जो हमारे जो रिजल्ट है वो जो कंक्लूजन हमने ड्रा की है वो कंक्लूजन जो है वो ठीक ना हो. सो इन दिस केस पॉसिबल है. मॉडेस्टी मीन it is the next virtue of the explanation. Modesty means explanation should not claim any more than is needed to explain the observed facts. Any details in the explanation must relate to explaining one of the observed facts. Modesty यही है कि जो चीज़ अकर हुई है, जो फैक्ट्स फिगर्स हैं उसी पर बात की जाए. जो चीज़ें नहीं हुई, जो फैक्ट्स नहीं है, उसको एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है. यानी इसको आप एग्जेजरेशन भी कह सकते हैं या मोर देन द अकर्ड सिचुएशन अगर हम बात करते हैं तो दैट इज़ अगेंस्ट द मॉडेस्टी. तो मॉडेस्टी इज़ वन ऑफ द वर्चू कि जो चीज़ जितनी है उतनी ही बयान की जाए, उससे ज़्यादा ना बयान की जाए, क्योंकि उसके हमारे पास एक्सप्लेनेशन होगी ही नहीं. द नेक्स्ट थिंग इज सिंप्लिसिटी. एक्सप्लेनेशन दैट posit fewer entities or processes are preferable to explanation that posit more entities or processes. All other things being equal, the simplest explanation is the best. This is sometimes referred to as a Occam's razors. After Williams of Occam's at 1287 to 1347, the medieval philosopher and logician of that time. So simplicity का मतलब ये होता है कि हम जो है अगर हमारे पास फीवर वो भी है हमारे एक्सप्लेनेशन में फीवर फैक्ट्स एंड फिगर्स भी है, लेकिन वो हमारे सिचुएशन को बेस्ट एक्सप्लेन कर सकते हैं, तो दैट इज़ मच मोर बेटर देन द अदर कि वो वहाँ बहुत से हो लेकिन वो हमारे सिचुएशन को बेस्ट एक्सप्लेन ना कर सकते हो. तो दिस सिंप्लिसिटी मीन कि इट इज़ सफिशिएंट फॉर आवर एक्सप्लेनेशन
कि जो हमारे पास फैक्ट वो है वो हमारे इसको बेस्ट एक्सप्लेन कर रहे हैं, तो इट इज सफिशिएंट। देयरफॉर इट इज सेड एक्सप्लेनेशन दैट पॉजिट फ्यूअर एंटिटीज और पॉजेज आर प्रेफरेबल टू एक्सप्लेनेशन दैट पॉजिट मोर एंटिटीज देन। क्लियर? वाई? कि अगर वो हमारी सिचुएशन को डिस्क्राइब करते हैं, इट्स ओके, ज़्यादा एक्सप्लेनेशन की ज़रूरत हमें नहीं है। द लास्ट वन वर्च्यू ऑफ द 7 virtues of the explanation is conservativeness. Explanation that force us to give up fewer well-established beliefs are better than explanation that forces to give up more well-established beliefs. What is basically conservativeness? Explanations that forces us to give up fewer well-established beliefs are better than explanations that forces us to give up more well-established beliefs. कहते हैं कि कंजर्वेटिवनेस को कहते हैं कि हमारे पास जो फ्यूअर वो है वेल एस्टेब्लिश बिलीव्स हैं, ठीक है, जो हमने मेंटेन किए हैं फैक्ट्स एंड फिगर्स की बेस पे, वो मच मोर बेटर है उनसे कि जो हमें कहा जाए कि इससे ज़्यादा जो आपके पास एविडेंसेस है, वो एस्टेब्लिश फैक्ट आपके पास बहुत ज़्यादा हो सकते हैं, आप उसको ले लें और ये फ्यूअर को छोड़ दें। हमारे पास फ्यूअर वेल एस्टेब्लिश बिलीफ है जो हमारे सिचुएशन को बेस्ट डिस्क्राइब करते हैं, तो देयर इज़ नो नीड टू गो अबाउट मोर, to go behind more explanations, because that is not relevant, and that is also against the you can say the depth, and that's against the modesty of the virtue of the explanations. So ये 7 virtues है बेटा explanations के, और इसी को आगे जो है वो क्या नाम है पैराग्राफ्स में एक्सप्लेन किया गया है वन बाय वन इन द सेम सिचुएशन, कि जो सिचुएशन इस वक्त हमारे पास अकर हुई है कि जो है वो विंडो ब्रोक हुई है और आईपॉड मिसिंग हुआ है, तो इसमें जो हमारे पास जो इस वक्त कौन से में डेप्थ मौजूद है और कौन से में जो है वो इस वक्त हमारे पास डेप्थ मौजूद नहीं है, वन बाय वन जो है वो सिचुएशन को यहाँ डिस्कस किया गया है। This explanation raises many questions as it answer, and it thus lacks the explanatory virtue of depth. ये जो हमारे पास इस वक्त सिचुएशन है कि हम कहते हैं ऐसा भी अगर हुआ, ऐसा भी अगर हुआ होगा, ऐसा भी अगर हुआ होगा, ये जितने हमने एविडेंसेस कलेक्ट करने की कोशिश की है, इसका मतलब ये है कि फिर जो है वो हमारे पास चूँकि हमने बहुत ज़्यादा क्वेश्चन रेज किए हैं जो हमारे सिचुएशन को फेवर नहीं कर रहे, देयरफॉर इसमें डेप्थ की जो है वो हमारे पास कमी है। सिमिलरली नेक्स्ट वो जो हमारे पास वर्च्यू था कि वो पावर है, कि कंसीडर नो एक्सप्लेनेशन दैट लेक्स द एक्सप्लेनेटरी पावर, कि जो इससे रिलीवेंट जितने फैक्ट्स फिगर्स हैं कि इससे पहले ऐसे सिचुएशन हुए हैं, तो उस सिचुएशन में भी हमने ये बिलीव माना था कि चूँकि इससे पहले अगर किसी गाड़ी का शीशा टूटा है और वहाँ से आईपॉड मिसिंग हुआ है, तो हमने देखा है कि उसका वो जो रिकॉर्ड पे जो चीज़ आई है वो ये आई है, ठीक है ना जी, रिकॉर्ड पे जो चीज़ आई है वो ये आई है कि ये तीफ ने ही ऐसा काम किया है, तो फिर हमें अपने बिलीफ पे जो है वो स्ट्रेंथ होगा, यानी हम श्योर होंगे कि हमारा बिलीफ ठीक है। दस द थीफ एक्सप्लेनेशन वुड बी मोर पावरफुल एक्सप्लेनेशन whereas the stray baseball explanation would lack the explanatory virtue of power। तो फिर हमारे चूँकि प्रीवियस जो सिचुएशंस हैं, अकरेंसेस हैं, उसकी बेस पर हमारे रहे, तो ये हमारे जो इस वक्त सिचुएशन है इसमें ये ज़्यादा पावर, यानी जो वर्चू एक्सप्लेनेशन का जो वर्चू है पावर, वो यहाँ ज़्यादा फेवरेबल है। इसी तरह जो falsifiability है, कैन बी confusing concept to grasp the situation, how can anything having to do with being false by be a virtue of an explanation, कि कोई एविडेंस गलत हो तो वो किसी जो है वो सिचुएशन को एक्सप्लेन कैसे कर सकता है, ठीक है ना जी। तो देयर फोर वी से दैट कि अगर हमारे किसी सिचुएशन में कोई चीज़ हमने बयान की है और वो फाल्सिफाइबिलिटी पे डिपेंड करता है, दैट इज़ नॉट करेक्ट, ठीक है, इनकरेक्ट है, तो वो से हम जो है वो ट्रू रिजल्ट नहीं निकाल सकते, तो उस वक्त वो भी हमारे लिए ज़्यादा जो है वो फेवरेबल नहीं होगा। क्लियर? इसी तरह हम देख लें कि हमारे पास बाकी सिचुएशंस में जो मॉडेस्टी है, कि हम जो है वो ये देख लें कि दिस एक्सप्लेनेशन वुड लेक द एक्सप्लेनेटरी वर्च्यू ऑफ मॉडेस्टी। The problem is that the hypothesis is far more specific than it needs to be in order to explain the relevant observed facts। क्लियर? चूँकि हमने मॉडेस्टी के बारे में यही स्टडी के ऊपर कि जो इस वक्त हमारी सिचुएशन है उस सिचुएशन के मुताबिक बात करें, उससे ज़्यादा ना करें, तो हमारे पास फैक्ट्स ऐसे नहीं हैं कि जो बिल्कुल स्पेसिफिक उस सिचुएशन को बयान कर सके, बिकॉज वी हैवंट ऑब्जर्व समवन दैट हैज़ बीन जो है वो स्टीलिंग
द iPod एंड ब्रेकिंग द विंडो ऑफ द कार, हमने ऐसा कोई देखा नहीं है, देयर फॉर फैक्ट्स तो नहीं है, लेकिन हम ये इज्यूम कर रहे हैं, इंफरेंस कर रहे हैं हमें से। इसी तरह जो है वो सिंप्लिसिटी है, द एक्सप्लेनेटरी वर्च्यू ऑफ द सिंप्लिसिटी टेल अस द अदर दैट ऑल अदर थिंग्स बीइंग इक्वल द सिंपलेस्ट एक्सप्लेनेशन इज़ द बेटर वन एक्सप्लेनेशन, कि जो हमारे पास इस वक्त सिंपली हालात को ज़्यादा अच्छे तरीके से एक्सप्लेन कर सकता है, हम उस सिचुएशन को ले लें और बाकी कम्प्लेक्सिटीज़ को छोड़ दें। इस सिचुएशन में हम देखेंगे कि यहाँ सिंपल ऐसे ही हो सकता है कि अगर किसी और वजह से गाड़ी का शीशा टूटा होता तो फिर आईपॉड मिसिंग नहीं होना चाहिए था, लेकिन चूंकि आईपॉड मिसिंग है इसलिए हम सिंपली कह सकते हैं किसी ने आईपॉड के लिए ही गाड़ी का शीशा तोड़ा है। तो दैट इज़ वन ऑफ द सिंपल कंक्लूजन दैट वी कैन ड्रॉ एट हियर। सिमिलरली इन द लास्ट के हम कहते हैं कंजर्वेटिवनेस है, ठीक है। तो कंजर्वेटिवनेस के बारे में हम ये कहते हैं कि टेल अस that better explanations are one that forces us to give up favor well established belief than the more that we can make that didn't focus on the situation or clearly explain the situation। तो यही है कि इस वक्त हम कहते हैं कि जो चीज़ लग रही है सिचुएशन से वो ये लग रही है कि तीफ आया और उसने शीशा तोड़ा है और वो आईपॉड लेके गया हुआ है, ठीक है ना जी। और इसके अलावा बाकी जितने भी एक्सप्लेनेशंस हैं वो एक्सप्लेनेशन बहुत ज़्यादा किए जा सकते हैं, लेकिन वो फोकस्ड नहीं है। जो फोकस्ड हमारे पास है वो ये सिचुएशन है। तो ये हमारे पास आज के लेक्चर में in the today lecture we have discussed about the explanations and the best inference to the explanation, and also the 7 virtues of explanation that has been explained in the today lecture. So now I hope that you will be able to solve the exercise number 23, and as I have discussed with you the last situation of the generalization, and then I solved the first 4 questions in the exercise number 22, and the remaining question you should attempt yourself, and if there is any difficulty you are facing, then you can contact with me. Similarly, you have also to try to solve the this exercise number 23. I will try to solve some of the questions and will share with you in the WhatsApp group or here in the description, and then after that you will be able inshallah to solve the other remaining question. Okay, thank you very much, and I hope that inshallah this lecture will be completely clear to you. Thank you.